السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، جو اردو کا 8 کلاس کا بورڈ کا پیپر ہوگا، ایم سی کیوز کے بعد بیٹا آپ کو سبجیکٹیو پارٹ ملے گا، یعنی حصہ انشائیہ ملے گا، پارٹ بی ملے گا۔ اب وہ جو آپ کا پارٹ بی ہوگا وہ 60 نمبر کا ہوگا۔ اب اس 60 نمبر کے پیپر میں جو پہلا کوسچن آپ کے سامنے آئے گا وہ مختصر سوالات کے جوابات ہوں گے، اور آپ اندازہ کریں 60 نمبر کا پورا پیپر ہے اور اس میں 20 نمبر کے سوال جواب ہوں گے۔ اب سوال جواب جو ہے وہ شارٹ ہوں گے، مختصر سوال ہوں گے۔ اس میں ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں نا آپ کو ٹوٹل 13 سوال دیے ہوں گے اور آپ کو کوئی سے 10 کرنے ہوں گے، مطلب 3 کی آپ کو چوائس بھی ملے گی۔ تو بیٹا اس ویڈیو کے اندر ہم ان تمام کی تمام بک سے، جو ہمارا سمارٹ سلیبس کے مطابق ہے، امپورٹنٹ کویسچن بیٹا میں نے نکالے ہیں۔ آپ ویڈیو کو پورا سنیے گا، ویڈیو میں سارے کے سارے کویسچن آپ نے سننے بھی ہیں اور کرنے بھی ہیں۔ ان کو اگر آپ ساتھ ساتھ لکھتے رہیں گے تو وہ اور بھی اچھا ہو جائے گا، تاکہ آپ کو یہ سارے کے سارے کویسچن جو ہیں آپ ایک بار لکھیں گے تو آپ کے ہاتھوں سے بھی نکل جائیں گے اور آپ کو آدھے یاد بھی ہو جائیں گے سننے سے۔ تو ان کو لکھ لیں، یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کا جو بورڈ کا پیپر کے کویسچن آنسر ہے وہ آپ کے ڈن ہو جائیں گے۔ تو چلیں بیٹا ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں، اور ویڈیو کو لائک بیٹا ضرور کر دو، اور چینل پہ اگر نئے آئے تو سبسکرائب بھی کر دو، کیونکہ ہم تمام کے تمام سبجیکٹس کی تیاری کروا رہے ہیں چینل پہ۔ اور ہم بغیر ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس میں بیٹا فرسٹ جو کوشچن ہے آپ کا وہ ہے کہ خالق کا بھی ہوتا ہے عرفان مدینے میں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ خالق کا بھی ہوتا ہے عرفان مدینے میں سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان مدینے میں ہوتی ہے۔ اب اس میں دو ورڈ جو یوز ہوئے ہیں، ایک معرفت اور پہچان، دونوں کا مطلب سیم ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے وہ انسان کو کہاں پر جا کر بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا سب سے زیادہ مین ایک ذریعہ کیا ہے، وہ ہے مدینہ، یعنی جہاں جا کر انسان کا ایمان جو ہے وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے جی، حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب کون سی تلوار پسند آئی؟ کیا وہ تلوار انہیں ملی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعید بن عاص کی ذوالقطیفہ نامی تلوار پسند آ گئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اسے جہاں سے اٹھایا ہے وہیں رکھ دو، لیکن بعد میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار لینے کی اجازت دے دی۔ اب پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کیوں اجازت نہیں دی تھی؟ کیونکہ وہ تلوار جو ہے وہ مال غنیمت سے آئی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو منع کر دیا تھا۔ لیکن چونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص بہت بہادر تھے، تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چیز کی اجازت دے دی تھی۔ نیکسٹ ہے جی ہمارا کوشچن نمبر 3، اور وہ ہے عشرہ مبشرہ سے کیا مراد؟ اس میں بیٹا اگر آپ ورڈز کے میننگ دیکھیں تو عشرہ کا مطلب ہے 10، اور مبشرہ کا مطلب ہے خوشخبری دیے گئے یا بشارت دیے گئے، یعنی اس کا جواب کیا ہے کہ عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی۔ یعنی یہ جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ 10 لوگ کون سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دی تھی، تو وہ 10 لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، جن میں نے آپ کو اگر میں کہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر وغیرہ بھی شامل ہیں۔ پھر ہے جی ہمارا سوال نمبر 4، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے صنف سخن میں کیا کہتے ہیں؟ صنف سخن میں مطلب یعنی ادبی لحاظ سے وہ نظم کیا کہلاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے صنف سخن میں حمد کہتے ہیں۔ حمد جو ہے وہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ پھر ہے جی نیکسٹ آپ کا سوال نمبر 5، اور سوال نمبر 5 ہے کہ تیری زمیں کے یہ چاند تارے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس میں تیری زمیں کے یہ چاند تارے سے شاعر کی مراد وطن عزیز کے شہری ہیں، یعنی اہل وطن چاند ستاروں کی مثل ہیں،
यानी तेरी जमीन से मुराद वतन की मिट्टी। और यहाँ पे जो एक कहा गया है कि चांद सितारे, तो चांद सितारे कहा गया है इस वतन के रहने वाले लोग, यानी के उसके शहरी। फिर है नंबर 6, जिसमें सवाल है जी इत्तेहाद के चंद फवाइद बताएं। इत्तेहाद मतलब मिलकर रहना। तो इत्तेहाद के चंद फवाइद अज़ल हैं। पहला क्या है? इत्तेहाद के जरिए किसी भी मकसद का हसूल आसान हो जाता है। हसूल का मतलब यानी कि कोई भी मकसद आसानी से हासिल होता है। दूसरा क्या है जी? इत्तेहाद से कौमों की तकदीर बदलती है। यानी अगर इंसान ये चाहे कि वो अपने आप को बुलंदी तक ले जा सकता है, अपनी तकदीर बदल सकता है, तो उसके लिए उसका इत्तेहाद में होना या मुत्तहिद होना जरूरी है। तीसरा है जी इत्तेहाद से काम जल्दी और बआसानी हो जाता है। चौथा है जी इत्तेहाद के जरिए बड़े से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया जा सकता है। यानी एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक कि वो मिलकर कोई काम ना करे। पांचवा है जी इत्तेहाद से रहने वालों के साथ अल्लाह ताला की मदद भी शामिल होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी इस चीज को पसंद फरमाया। इसके बाद नंबर 7 है जी दिन फिरना एक मुहावरा है। इसका क्या मतलब है? दिन फिरना से मुराद है हालात सुधरना, यानी हालात बेहतर होना, ठीक हो जाना, परेशानी का खत्म हो जाना, और खुशबख्ती के दिन आना। यानी खुशबख्ती मतलब इंसान की किस्मत बदल जाना और उसके लिए हर तरफ अच्छाई आना। फिर है जी नंबर 8, शब्बीर शरीफ शहीद को किन दो एजाजात से नवाजा गया? मेजर शब्बीर शरीफ शहीद पाक फौज के वाहिद ऑफिसर हैं जिन्हें दो एजाजात सितारा जुर्रत और निशान हैदर से नवाजा गया था। ये तो हो गए हमारे 8 सवाल। अब हम आते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है हमारा नंबर 9, डिजिटलाइजेशन से क्या मुराद है? डिजिटलाइजेशन तरीके के तहत वो सरकारी एहलकार जिन्होंने किसी शहरी का कोई काम करना होता है और वो शहरी जिन्होंने इनसे काम करवाना होता है, दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया जाता है। यानी शहरियों के मसाइल ऑनलाइन या डिजिटल निज़ाम के तहत एक खुदकार अंदाज में हल किए जाते हैं। यानी किसी भी सिस्टम को, किसी भी काम को ऑनलाइन तरीके से करना जो है वो डिजिटल सिस्टम के तहत काम करना कहलाता है। फिर है जी नेक्स्ट नंबर 10, सकाफत किसे कहते हैं? इंसानों के मुश्तरका, मुश्तरका यानी जो सब मिलकर एक काम करते हैं, इंसानों के मुश्तरका रहन सहन और जिंदगी बसर करने के तौर तरीकों को सकाफत कहते हैं। यानी अगर हम इसको इसको वैसे भी इसकी तारीफ पढ़ें तो उसका मतलब होता है कि जो मुश्तरका रहन सहन है, अंदाज है, उस जो सारा हमारा खाना पीना, चलना फिरना, हर चीज, ये सब चीजें जो हमारी सकाफत कहलाती हैं। फिर नंबर 11 है जी मेला मवेशियां कब और कहाँ लगता है? मेला मवेशियां फरवरी के आखिरी हफ्ते में लाहौर में मुनक्कद होता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि मेला मवेशियां क्या होता है, ये जानवरों की नुमाइश है जहाँ पे जानवरों की खरीदो फरोख्त होती है। नेक्स्ट है जी नंबर 12, कोयटा के जल्जले में कितने अफराद हलाक और जख्मी हुए? कोयटा के जल्जले में 60,000 के करीब अफराद मौत के मुंह में चले गए और 60% से ज्यादा अमारात मलबे का ढेर बन गई। मलबे का ढेर बन गई मतलब कि अमारात तबाह बर्बाद हो गई। फिर है जी हमारे पास सवाल नंबर 13, पाकिस्तान की सकाफत कैसी है? पाकिस्तान की अपनी तहजीब व सकाफत है। इनके लिबास और इनकी सदियों पुरानी रवायात के अमीन हैं। इनके खाने, उनकी ज़ुबानें, रस्म रवाज और तर्ज तामीर अपने अंदर एक इनफरादियत लिए हमें। इनफरादियत का मतलब होता है कि जो जिनकी हर चीज़ जो है वो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि सकाफत जो है वो किसी भी मुल्क की मुश्तरका रहन सहन और जिंदगी के तौर तरीकों को कहा जाता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान की सकाफत ये है कि एक तो वो ऐसी सकाफत है जो इस्लाम पर बेस करती है और दूसरा वो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर है जी नंबर 14, चंद ऐसे ममालिक के नाम लिखें जो सारा साल गर्म रहते हैं। सऊदी अरब, कोयटा, कतर, ठीक है जी। फिर उसके बाद है नंबर 15, मौसम गर्मा और मौसम सरमा में किस किस्म का लिबास पहना जाता है? मौसम गर्मा में हल्के और बारीक कपड़े पहने जाते हैं,
جبکہ موسم سرما میں موٹے اور گرم کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ نمبر 16 ہے جی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا دریا میں کب اور کیوں ڈالا؟ بحر شیر اور دارالحکومت مدائن کے درمیان دریائے دجلہ حائل تھا، یعنی یہ دریا کا نام ہے۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کے خوف سے دریا پر جہاں جہاں پل تھے توڑ دیے اور دریا کے دامن میں پناہ لے لی، یعنی درمیان۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایرانیوں کی سرکوبی کے لیے دریائے دجلہ میں اپنا گھوڑا ڈال دیا، یعنی یہ مسلمانوں اور ایرانیوں کا جو ایک مقابلہ تھا، اس میں حضرت سعد نے جو ہے وہ جب اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا تو باقی جو لوگ تھے مسلمان تھے انہوں نے بھی بے خوف و خطر جو ہے وہ انہی کو ہی فالو کرتے ہوئے ان کے پیچھے جو ہے وہ اس دریا کو عبور کیا۔ پھر ہے جی نمبر 17 ہے، درس عمل کا کیا مطلب ہے؟ درس عمل سے مراد محنت، مشقت اور عمل کرنے کا سبق ہے، یعنی وہ چیز جب انسان محنت کرتا ہے، یعنی وہ کسی چیز کو سیکھتا ہے تو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پھر ہے جی نمبر 18، موسم بہار کا منظر 2 جملوں میں بیان کریں۔ پہلا کیا ہے؟ درختوں پر نئے پتے نکلتے ہیں، یعنی موسم بہار کی ایک خاص خوبی ہے، نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، ہر طرف پھول ہی پھول اور سبزہ دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 2، موسم بہار میں پھولوں کی نمائشیں منعقد کی جاتی ہیں اور جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، یعنی جو لوگ جو ہے وہ خوشی سے ان نمائشوں کو دیکھتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پھر ہے جی ہمارے پاس سوال نمبر 19، اسلام سے قبل عربوں کے کیا حالات تھے؟ اسلام سے قبل عربوں کی حالت زار کا جائزہ لیں، یعنی ایسی حالت جس پر جو ہے وہ میرا خیال افسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو اس دور جہالت میں عورتوں کے کوئی حقوق نہ تھے، یعنی ایسا دور تھا کہ جس میں لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، تو اس دور میں عورتوں کے کوئی حقوق نہ تھے۔ بیٹی کی پیدائش پر بجائے خوشی منانے کے سوگ کا سما ہوتا تھا، یعنی لوگ بیٹی کی پیدائش پر دکھ کا اظہار کرتے تھے۔ بعض مقامات پر تو بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ عورت کو کسی بھی حیثیت میں عزت کی زندگی نصیب نہ تھی، یعنی عورت کو سب سے زیادہ کم تر حیثیت جو ہے وہ اسلام سے قبل عربوں کے دور میں دی جاتی تھی۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 20، کیا ریاست صرف سزا و جزا کے ذریعے کرپشن پر قابو پا سکتی ہے؟ کرپشن کیا ہے؟ یعنی غلط طریقے سے، بدعنوانی سے، مختلف ایسے طریقے استعمال کرنا کہ جو جائز طریقے نہیں ہوتے ہیں۔ تو ریاست صرف سزا و جزا سے کرپشن پر قابو نہیں پا سکتی۔ اس سزا و جزا مطلب اگر کسی کو کسی چیز پر، غلط چیز پر سزا دینا اور جزا دینا، یعنی یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس پر قابو نہیں، اس کے ذریعے قابو نہیں پایا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام الناس کو ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے اور ایماندار لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یعنی ایسی چیزیں جو ہوں گی اگر جو ہے وہ صحیح طریقے سے ان کو جو ہے ملک میں لگایا جائے گا تو کیا ہوگا کہ کرپشن کا خاتمہ مکمل طور پر کیا جا سکے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے جی، علامہ اقبال کی 3 کتابوں کے نام بتائیں۔ اس میں علامہ اقبال کی 3 کتابوں کے نام درج ذیل ہیں، ضرب کلیم، بانگ درا، بال جبریل۔ پھر نیکسٹ کوشچن ہے جی، ہنگول نیشنل پارک میں سیاحوں کی آمد کا آغاز کب ہوتا ہے؟ سیاح کہتے ہیں جو مختلف جگہوں سے آتے ہیں مختلف جگہوں کی سیر کرنے کے لیے۔ ہنگول نیشنل پارک میں سیاحوں کی آمد کا باقاعدہ آغاز 2004 میں مکران کوسٹل ہائی وے کی تکمیل کے بعد ہوا تھا۔ نمبر 23 ہے جی کہ اسلام نے مردوں کو بیویوں کے معاملے میں کیا حکم دیا ہے؟ تو اسلام نے مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کی تمام ضروریات پوری کریں، ان کے نان و نفقہ کا اپنی حیثیت کے مطابق اہتمام کریں۔ نان و نفقہ مطلب ان کا جو روزمرہ کا خرچ ہے، اس سے نرمی سے اور شفقت سے پیش آئیں۔ نیکسٹ ہے جی نمبر 24، عمل کے جوہر دکھانے سے کیا مراد ہے؟ جوہر کہتے ہیں خوبی کو، عمل کے جوہر دکھانے سے مراد یہ ہے کہ اچھے عمل کی خوبیاں لوگوں کو دکھاؤ، یعنی اچھا کام کرو اور لوگوں کو اپنے اندر جو اچھی چیزیں ہیں وہ دکھاؤ۔
ऐसे काम करो जिससे आपकी लियाकत बढ़े, यानी जिससे आपकी काबिलियत में इजाफा हो। अल्लाह ताला ने इंसान को किस अनमोल नेमत से नवाजा है, यानी कोई क्या खास ऐसी नेमत है जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी है जो दूसरों में नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को अकल और शऊर, शऊर मतलब समझ, जैसी अनमोल नेमत से नवाजा है। उसके बाद है जी नंबर 26, मौसम बहार में कौन सी नुमाइशें मुनक्कद की जाती हैं? मौसम बहार में फूलों की नुमाइशें मुनक्कद की जाती हैं। ये एक बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 की जंग के दौरान शब्बीर शरीफ शहीद फौज में किस ओहदे पर फाइज थे? 1965 की जंग के दौरान मेजर शब्बीर शरीफ शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट के ओहदे पर फाइज थे। फिर है जी नंबर 28, मायूसियों में उम्मीद के नगमे किस तरह छेड़े जा सकते हैं? यानी कि उसका अगर जवाब में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ आसान वर्ड्स में, मायूसियों में उम्मीद के नगमे इस तरह छेड़े जा सकते हैं कि अगर कहीं किसी काम में मायूसी आ जाए तो जान लो कि हर तंगी के बाद आसानी है। यानी अगर इंसान कभी मायूस हो तो उसके ये इल्म में होना चाहिए कि मायूसी जो है वो गुनाह है, और जब इंसान मायूस होता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने उसके लिए आसानी भी रखी होती है। लिहाजा हिम्मत ना हारो और बढ़ते चले जाओ। बढ़ते चले जाने से मुराद क्या, कि जो भी कोशिश कर रहे हो उसको जो है वो जारी रखो और किसी तरीके से भी अपने काम से मत रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कुदरती आफत किसे कहते हैं? कुदरती आफत से मुराद ताउन, हैजे और मलेरिया जैसी वबाएं हैं। वबा कहते हैं उस बीमारी को जो बहुत तेजी से फैलती हैं। इसके अलावा जल्जले, बारिशें, सैलाब भी कुदरती आफात हैं, यानी वो वबाएं, वो चीज़ें जो इंसान के बस में नहीं होती बल्कि कुदरती तौर पर जो है वो मुख्तलिफ शक्लों में नाजिल होती हैं। नेक्स्ट है जी, हजूर अकरम खातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुश मिजाजी से मुतल्लिक हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज तहरीर करें। यानी आप एक अच्छा खुश मिजाज रखते थे, तो हजरत जो अब्दुल्ला बिन हारिस थे उन्होंने उनके बारे में क्या कहा? हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुस्कुराने वाला किसी को नहीं देखा। अगला सवाल है जी, घर के कामों में वालिदैन की मदद करनी चाहिए या नहीं? घर के कामों में वालिदैन की मदद जरूर करनी चाहिए, सिंपल सा इसका जवाब है। अगला सवाल है, मरी को मलका कौसार क्यों कहा जाता है? कौसार कहा जाता है पहाड़ों को, ठीक है। तो मलका कौसार का मतलब है पहाड़ों की मलका। मरी को मलका कौसार इसलिए कहा जाता है कि ये खूबसूरत पहाड़ी स्टेशन है जो सयाहों के दिलों के बहुत करीब है। यानी जो लोग भी वहां सैर करने के लिए आते हैं तो यहाँ के खूबसूरत पहाड़ देखकर जो है वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पहाड़ों के कुदरती नज़ारे सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं, यानी जो लोग वहां आते हैं वो बहुत ज्यादा खुशी का इजहार करते हैं और वहां कोशिश करते हैं कि ज्यादा देर रहकर उससे लुत्फ अंदोज हो सकें। अगला सवाल है जी, सदाकतों के दिए का क्या मतलब है? सदाकतों के दिए से मुराद सच्चाई के चिराग जलाना। सदाकत कहते हैं ना सच्चाई को, तो सदाकतों के दिए से मुराद है सच्चाई के चिराग जलाना। यानी अहले वतन सच का पैगाम सुनाने वाले हैं, यानी जो इंसान जो है वो सच को अपनाएगा तो वो कामयाबी की तरफ जाएगा। तो यहाँ शायर भी एक ही जैसा सबक दे रहा है कि हमेशा जो है वो सच्चाई का दामन कभी हाथ से मत छोड़ो। अगला सवाल है, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब में परवाना किस चीज की अलामत बनकर आया? यानी परवाना यानी वो कीड़ा जो कि रोशनी के इर्द गिर्द घूमता है, तो यहाँ पे रोशनी उस परवाने से मुराद जो है वो शायर ने इल्म को कहा है। यानी इल्म भी वो रोशनी है जो कि बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। नेक्स्ट है जी, शफाफियत से क्या मुराद है? शफाफियत से मुराद किसी चीज का शफाफ होना यानी ईमानदारी है। यानी मुकम्मल तौर पर किसी भी चीज को अच्छे अंदाज से और साफ सुथरे अंदाज से बगैर किसी गलती के करना जो है वो शफाफियत कहलाता है। यानी कोई भी काम जो है वो ईमानदारी के साथ करना।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, करप्शन के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी करप्शन जिसे बदनुमानी भी कहा जाता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। करप्शन, बदनमानी किसी भी मुआशरे के लिए जहर कातिल है। यानी किसी मुआशरे को अगर बिगाड़ना हो तो उसमें सबसे जो एक मेन चीज है वो है करप्शन। करप्शन अदालती और सियासी निजाम को मफलूज कर देता है। मतलब कि एक तरह से जिसे आप कहते हैं कि जिस जहां भी करप्शन होगी तो वहां का अदालती निज़ाम, वहां का सियासी निज़ाम बिल्कुल जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। और करप्शन मुआशी तरक्की और नमू में बहुत बड़ी रुकावट है। यानी मुआशी तरक्की यानी मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती, उसमें उस तरक्की में बढ़ने के कोई इम्कानात जो है वो नहीं हो सकते जिस भी जगह पे करप्शन के जो आसार नजर आते हैं। फिर है जी, पाकिस्तान में कौन सी अकलियतें रिहाइश पजीर हैं? यानी कि अकलियतें मतलब जो, अगर हम मुसलमान हैं पाकिस्तान में तो मुसलमानों के अलावा और कौन से लोग जो हैं वो यहाँ पे आबाद हैं? तो पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों और मसीहियों की एक बड़ी तादाद रिहाइश पजीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अंधेरा दूर होने से क्या मफहूम निकलता है? अंधेरा दूर होने का मफहूम ये है कि जहालत की तारीकियां और अंधेरे खत्म होकर इल्म की शमा रोशन हो जाए। यानी कि वो चीज जो इल्म से आती है, यानी इल्म के बगैर किसी चीज को अगर हम कहते हैं तो वो जहालत है। तो जब हम जहालत की तारीकी में डूब जाते हैं तो फिर हमें किसी भी चीज, गलत और दुरुस्त चीज का अंदाजा नहीं होता। और इल्म की शमा वो है जिससे जहालत जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। यानी इंसान जो है वो हर चीज के बारे में जानना शुरू कर देता है। फिर है जी, पाकिस्तान को जुग्राफियाई इतबार से कैसे तकसीम किया गया है? जुग्राफियाई इतबार से पाकिस्तान को 24.50 और 36.75 अर्ज बल्द शमाल, 61 से 75.5 तूल बल्द मशरक के दरमियान तकसीम किया गया। यानी ये पाकिस्तान की जो एक लोकेशन है, उसकी डिवीजन है, ये उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है जी, हिस्से लतीफ से मुतल्लिक आप क्या जानते हैं? लतीफ कहते हैं नरम, उम्दा और बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक पुरसकून चीज। तो पुरलुत्फ, उम्दा और हुस्न जमाल की महसूसात, नरम, मुलायम और पाकीज़ा बातों के एहसास को हिस्से लतीफ कहते हैं। यानी ऐसी चीजें जिनको सुनते हैं आप तो वो आपको अच्छी लगें, वो खूबसूरत लगें और आपको जो है वो पाकीज़गी का एहसास हो, तो उस एहसास को कहते हैं हिस्से लतीफ। कबल इस्लाम लड़कियों या बेटियों से कैसा सलूक किया जाता है? कबल इस्लाम मतलब इस्लाम से पहले। कबल इस्लाम लड़कियों या बेटियों की पैदाइश पर बजाय खुशी के सोग का समा होता था। यानी दुख का समा होता था। लोग दुख करते थे कि बेटी क्यों पैदा हुई। बाज मकामात पर बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। यानी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। आगे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और वो है जी, करप्शन की चंद सूरतें बयान करें। यानी करप्शन किस किस तरह से की जाती है? सूरतों का मतलब होता है यानी उसका किस अंदाज से, किस शक्लों में करप्शन जो वो होती है। छोटे या बड़े पैमाने पर मालियाती हेरफेर, गबन यानी पैसों का हेर फेर, धोखा, फरेब, झूठ, बेकायदगी से माल बनाना करप्शन की चंद मारूफ सूरतें हैं। यानी ये आम जो नजर आती हैं वो ये हैं कि जिसमें हम ये चीजें हमारे सामने आती हैं। अगला सवाल है, मेजर शबीर शरीफ का मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद से क्या रिश्ता है? मेजर शबीर शरीफ शहीद मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद के भांजे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आप दुआ में ज्यादातर क्या मांगते हैं? मैं दुआ में ज्यादातर दुनिया और आखिरत की भलाई मांगता हूँ। यानी जाहिर है कि सबसे अच्छी दुआ है कि जिसमें इंसान दुनिया में भी अपने लिए कामयाबी की दुआ करे और आखिरत में भी। उसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है, सैलाब किस तरह नुकसान पहुंचाता है? सैलाब की वजह से हजारों इंसान, जानवर मौत के मुंह में चले जाते हैं, मकान ढह जाते हैं मतलब गिर जाते हैं, गाड़ियां सैलाब के पानी में बह जाती हैं और फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। अगला सवाल है, बेहतरीन दिमाग के लिए क्या जरूरी है? बेहतरीन दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नबी करीम खातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को किस तरह इज्जत से नवाजते थे? यानी पीछे अभी आपने पढ़ा ना कि जमाने जाहिलियत में बेटियों की कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है
और उसका जवाब क्या है इस सवाल का कि नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मिसाल बनाकर हमारी तरबियत की। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिस प्यार और शफ़क़त से परवरिश की वो हमारे लिए मिसाल है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब भी आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए तशरीफ़ लाती तो आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इस्तकबाल खड़े होकर करते, उनके बैठने के लिए अपनी चादर बिछाते। यानी ये वो आलम था कि जिसमें अगर हम ये कहते हैं कि ज़माना जाहिलियत में औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अपनी बेटी के इज्जत एहतराम के लिए उठकर खड़े हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आप अपने वतन का वकार बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? वकार मतलब इज्जत, एहतराम, यानी कि हम अपने वतन की इज्जत कैसे बढ़ा सकते हैं? मैं अपने वतन का वकार बढ़ाने के लिए सच्चाई, मेहनत, खलूस नियत और लगन जैसी सिफात अपनाकर वतन का वकार बढ़ाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा हूँ। यानी खलूस नियत यानी हर काम नेक नियति से करना, लगन मतलब मेहनत से। अगर ये सब चीजें होंगी तो इसका मतलब ये है कि वतन की इज्जत और वकार खुद ब खुद जो है वो बढ़ते जाएंगे। उसके बाद अगला सवाल है जी, मौसम सरमा में कौन से खुश्क फल खाए जाते हैं? मौसम सरमा में खुश्क फल जैसे कि पिस्ता, बादाम, अखरोट, चलगोजे, गरम गरम चने, मकई, काजू और मूंगफली बड़े शौक से खाए जाते हैं। अगला सवाल है जी, एक अच्छा मुआशरा खवातीन को किस तरह के हकूक देता है? मुख्तसरन बयान करें। एक अच्छा और महज़ब मुआशरा खवातीन को मसावात की बुनियाद पर हकूक देता है। मसावात मतलब जिसमें औरत और मर्द सबको एक जैसा बराबरी का जो है वो मकाम दिया जाए। इनमें बुनियादी तौर पर तालीम हासिल करने का मुकम्मल हक, सेहत की बेहतरीन सहूलियात का हक, मुआशी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के मसावी मौके, मतलब कि अगर वो रोजगार कोई हासिल करना चाहती हैं तो उन्हें इस चीज की इजाजत हो, और मलकियत या विरासत में हक शामिल हो, यानी जायदाद में उनका जो है वो जो हिस्सा इस्लाम ने मुकर्रर किया वो उनको दिया जाए। इसके अलावा उन्हें हर किस्म के तशद्दुद से हिफाजत, यानी उन पर किसी किस्म का तशद्दुद न किया जाए, और अपनी राय के इजहार की आज़ादी दी जाए, यानी वो किसी भी चीज़ के मामले में अपनी राय का इजहार जो है वो कर सकती हैं। यानी ये एक अच्छा मुआशरा जो है वो इस्लाम के मुताबिक चलता है, और इस्लाम में औरत को ये तमाम हकूक हासिल हैं जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन आपके थे, जो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स लेंगे, क्योंकि इसमें मैंने आसानी से बहुत मुश्किल वर्ड्स को काफ़ी आसान वर्ड्स में चेंज करके आपको बताया है।